ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੌਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਆਈਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 1 BHK ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਗਲਤ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, 0 ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁप्ता होंगे। गलबात करेंगे। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत जी। जी धन्यवाद। गुप्ता साहब, सब तो पहला जी चीज़ चल रही है, जिस तरीके असीं देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक प्रैस वार्ता की, प्रैस वार्ता दे विच जो तत्थ पेश किए, जिस तरीके उन्होंने अपना पक्ष रखा तो उस तो बाद इलैक्शन कमिशन के अगे ये मंग करने की कोशिश की भी पारदर्शता लियाई जाए तो साफ तौर पर संविधान को बचाने की गल आखी। सब तो पहला तुसीं इस सारी घटनाक्रम को किस तरीके नाल देख रहे हो कि इस पद्धर दे नाल वोट चोरी हो रहा है, तुसीं इस चीज़ नाल इतफाक रख रहे हो या किस तरीके नाल इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस समय इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है कि अब उसे जीतने के लिए सही मुद्दे नहीं पकड़ना चाहता है, क्योंकि दरअसल जो विपक्ष में कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां हैं वो या तो परिवारवादी पार्टियां हैं या नॉन कैडर बेस्ड पार्टी हैं। अब कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का आज कैडर खत्म हो गया है जी, तो ये जमीन का मुद्दा उठा ही नहीं पा रहे हैं। इनको महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना ही नहीं पड़ रहा। ये इन्हें लग रहा है बस कोई ऐसा जादू सा मुद्दा आ जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, काम खत्म हो गया जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट तो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इनके मुद्दे आते हैं चले जाते हैं तो इनकी इमेज और ज्यादा कमजोर होती जा रही है जी। तो मैं समझता हूं वोट के मामले पर जो चुनाव आयोग का जो मामला है, जिसको ये वोट चोरी का मामला कह रही है, ये दरअसल कोई मुद्दा है ही नहीं जी। और अगर मुद्दा नहीं है तो इसको कैसे हाईलाइट करें और ऐसे पूरे विश्व में प्रचारित करें जैसे भारत में जो सरकार है वो लोकतंत्र विरोधी सरकार है। और शायद यही वजह है कि ये इस मामले को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विश्व भर में एक खराब मैसेज दिया जा सके, चाहे इससे देश की इमेज को बट्टा लगे, लेकिन इनको सरकार में वापस आना इसके लिए कुछ भी करेंगे ऐसा मुझे दिख रहा है। गुप्ता साहब, सब तो ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਐਡਰੈਸ ਨੇ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ? क्यों ਜਾਂ फिर विरोधी उस तरीके चक नहीं पा रहे? सुनिए, किसी भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में वहां के रहने वाले सभी वोटर की
समय समय पर वेरिफिकेशन होती है। ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ? ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब बिहार के चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कहा कि हम सारे वोटर्स का डेटा चेक कर रहे हैं जी। और उसके बाद उन्होंने एक जांच करके बताया कि लगभग 7.25 करोड़ वोटर हैं बिहार में, जिसमें से करीब करीब 6.5 लाख वोटर को का डेटा ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो बचे लोग हैं जिनका वोट चढ़ तो गया है, लेकिन वो ये बात साबित नहीं हो पा रही कि वो या तो वो लोग जिंदा हैं कि नहीं है, क्या वो विदेशी हैं, या जिनके कागजों में डिफेक्ट है, या वो बिहार छोड़ के चले गए हैं। ऐसे रीजन के ऐसे लोगों को वेरीफाई करना जरूरी है। जी। सरकार ने, चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को वेरीफाई करके लगभग 60 से 70 लाख लोगों को इनवैलिड किया कि भाई ये लोग ट्रू वोटर नहीं है। अब इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? एक तो वो लोग शामिल हैं जो गैर कानूनी तरीके से वोटर बन बैठे हैं एक। दूसरे वो लोग हैं जो बिहार में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, वोट वहां भी है, उन्होंने दूसरा बनवा लिया, नहीं बनवा लिया, लेकिन वो बिहार में नहीं रहते। और तीसरा वो जो मर गए हैं जी। चौथे वो जिनके डुप्लीकेट वोटर हैं। तो ऐसे में इन सब वोटरों को जो है चुनाव आयोग कैंसिल कर रहा है। पर ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। 65 ਲੱਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ज्यादा खराब लगने लग पिया, उसनू मैनिपुलेट किया जा रहा है तुहाडे हिसाब नाल? दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात यह है कि कुछ लोग उसमें पाए गए, तो चुनाव आयोग ने टाइम लिमिट दे रखी है कि अगर कोई किसी का वोट अगर गलती से कटा है तो एक अपना फॉर्म भर दे, जमा कर दे, उसका वोट आ जाएगा। उसमें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? जैसे बच्चा स्कूल गया, भाई लेट हो गया, बारिश हो रही है, तो स्कूल का रूल है कि 8 बजे के बाद अलाउ नहीं करेंगे। आप स्कूल में बता दो भाई बारिश हो रही थी, स्कूल वाला अलाउ कर देगा, बात खत्म। इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? आपको लग रहा है अरे 65 लाख वोटर आउट हो रहे हैं, आप 4 आदमियों को लेकर वोट गए, वो 4 आदमी अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, उनका वोट ठीक हो जाएगा, बात खत्म। इसमें इतना शोर मचाने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर लो कि इन 2 लाख लोगों का वोट कैंसिल है, तो मैं मानूं कि हाँ आप बात ठीक कह रहे हो जी। 65 लाख लोगों का वोट काटा है और आप 4 लोगों को लेकर बैठे हो जी, जबकि चुनाव आयोग कोई गलती हो तो ठीक करने को तैयार है। पर इसका मतलब है कि आप प्रोपेगेट करना चाहते हो माहौल को। एक गल दसो, जिवें जिवें तुसीं जिक्र भी कर रहे सी कि बड़ी जरूरी चीज, मैं एक सिर्फ एक पॉइंट, एक और बात कही जी 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 हाँ बोलिए। मैं एक पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट ऐड करने की कोशिश कर रहा सीगा, जिवें तुसीं भी जिक्र कर रहे हो कि जे कोई दिक्कत हैगी तो उन्होंने दस दिता जाए, उन्होंने दुरुस्त कर लिया जाऊगा। पर जे दिक्कत इन्ने वड्डे पद्धर ते होवे, सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने फड़ी, उहदे विच 1 ਲੱਖ तो वध वोट हैगी जिहड़ी, और जिक्र करने दावा कर रहे हैं कि 1 ਲੱਖ तो वध वोट जिहड़ी है वो मैनिपुलेट की हुई है। तो फिर 1 ਲੱਖ जो वोट का मैनिपुलेशन आ गया सामने, जिहदे विच इह जिक्र हो रहा कि जां तां वोट इनवैलिड है, जां फिर वो वोटर जिहड़े ने वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन्हां दे घर दे नंबर जिहड़े ने वो 0 लिखे हुए हैं कईयां दे। इस तो इलावा जे जिक्र करना होवे तां कुछ 36,000 तो वध वोटर नਵੇਂ ने जिन्हां ने फॉर्म 6 ਦਾ यूज़ किया होया हैगा। तो 1 ਲੱਖ तो वध वोट का जिक्र कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच। ते कहंदे सब तो वड्डी गल यह है कि इलैक्शन कमीशन सानू डिजिटल डाटा नहीं प्रोवाइड कर रहा, सानू कागज़ प्रोवाइड कर रहा, जिहदे विच लभण दे विच बहुत समा लग रहा है। तो जे इलैक्शन कमीशन इन्ना ही सही हैगा, इन्ना ही स्पष्ट हैगा, तो उन्होंने ये जानकारी क्यों नहीं पब्लिक डोमेन दे विच दे देनी चाहिए कि असीं इसनूं वेरीफाई कर लीए? आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। अब मेरा जवाब समझिए जी जी। अभी एक बहुत बड़े राज्य का डेटा वेरीफाई कर लिया चुनाव आयोग ने, बिहार का 65 लाख वोट काट दिए। तो आप पहले बिहार के डेटा चेक कर लो ना, आप कर्नाटक क्यों भाग रहे हैं? आप बिहार का डेटा चेक करो, जो 65 लाख निकाले उनमें से निकालो, चुनाव आयोग की गलती निकालो। हर बूथ पे आपकी टीम है, आपका कार्यकर्ता तो पूरे देश में, तो बिहार की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में या तो आप होंगे या आरजेडी के लोग होंगे, वो लोग निकालें गलती क्या है। आप कर्नाटक क्यों भाग रहे हैं?
जब बीजेपी जब चुनाव आयोग कर्नाटक जाएगा, ये आंध्र प्रदेश चले जाएंगे। तो मेरा पहला बात ये है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी को सबसे पहले बिहार के डेटा में गलती निकाल देनी चाहिए, क्योंकि बिहार अभी डिस्कशन में। गुप्ता जी एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ डिजिटल डाटा नहीं प्रोवाइड कर रही थी। जी जी। तो अब चुनाव आयोग इनको डिजिटल डेटा भी देने को तैयार है, पर ये इशू बनाना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। अब इन्होंने कर्नाटक का डेटा निकाला कि भाई इनमें ये गलती है। इसका मतलब आप ये राहुल गांधी ये बात को मान रहे हैं कि ये जो वोटर लिस्ट है वो गलत है ना, तो राहुल गांधी को फिर ये कहना चाहिए वोटर लिस्ट सारे देश की गलत है, इसको ठीक करो जी। तो पहले हुआ इंदिरा गांधी के टाइम क्या हुआ, राहुल गांधी के टाइम पे क्या हुआ, मोदी के टाइम पे क्या हुआ, भूल जाओ। पर अगर वोटर लिस्ट गलत है तो पूरे देश की वोटर लिस्ट ठीक होनी चाहिए, बात खत्म जी। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि कर्नाटक की लिस्ट गलत है, तो मैं कह रहा हूं जहां की भी गलत है वो सारी लिस्ट सही होनी चाहिए, बात खत्म है। राहुल गांधी को इस बात से क्या ऑब्जेक्शन है। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एक बात कही जी कि आपका पुराना रिकॉर्ड ये है कि आप बार बार कोर्ट की हियरिंग अटेंड नहीं करते हैं, आप बात कहते हैं बात से पलट जाते हैं, आप बयान देते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। तो आप एक ना एफिडेविट फाइल करके दे दो, अगर आपको लगता है कि कर्नाटक का जो डेटा इन्होंने दिया है जी वो ठीक है ना, तो आप उसे लिखित में दे दो। जैसे कई बार हम लोग किसी दुकानदार से रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, वो झगड़ा हो जाता है तो कहता मैं इस बात के एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, तो हम क्या कहते हैं, लिख के दे दे भाई और तू पैसे ले ले, फिर मैं देखूंगा तेरे कोर्ट में जी। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि आप जो भी कहना चाहते हैं आप एफिडेविट बना के लिख के कहिए कि मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आप चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त देश को चलाने वाली संस्था जिस पर लोकतंत्र की नींव बैठी है उसको आप चैलेंज कर रहे हो और फिर कल को आप शोर मचा के इलेक्शन जीत के भाग जाओगे, तो फिर आपको कोर्ट छोड़ना नहीं चाहती ना। तो चुनाव आयोग कह रहा है आप कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके दे दो कि जो मैंने कहा है उससे पीछे नहीं हटूंगा जी। हरप्रीत जी आपने मुझे फोन किया कि भाई चलो एक डिबेट करनी है, आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने ओके कर दिया, तो हमारे बीच में छोटा सा क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डिबेट में नहीं आऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है आने का, है ना। तो अगर कोई बात लिखित में हो जाएगी तो पक्की हो जाएगी जी। कल को अगर मेरी वजह से आपका शो खराब होगा, मेरे को केस फाइल करोगे ना, तो चुनाव आयोग वही कह रहा है जी कि अगर आपका डेटा सही है तो आप एक एफिडेविट दो कि हाँ ये डेटा मेरा है, मैंने वेरीफाई किया और आपने ये गलतियां करी हैं जी। कल को कोर्ट में साबित हुआ कि राहुल गांधी झूठे हैं, तो इस दौरान जो हुई डैमेज है उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये तो फिर भाग जाएंगे, फिर कहेंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहां रैली में गया, मैं वहां गया, ये 2-2 साल तक कोर्ट अटेंड नहीं करेंगे और जमानत का अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे में ये देश न्याय से चले, अपनी होशियारी चालाकी से, राजनीति से देश की स्वायत्त सरकारी संस्थाओं का नुकसान ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग कह रहा है एक एफिडेविट दे दो, हम कर्नाटक का डाटा भी वेरीफाई कर देंगे। बिल्कुल, वैसे ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 4-4 ਬੂਥ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PDF ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੋਟਰ ਆ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? मैं बताता हूं, अभी परसों ये सारे विपक्षी सांसदों ने एक शर्ट पहनी मिंटा देवी के नाम की और इन्होंने कहा मिंटा देवी का वोट चोरी हो गया
और बिहार में किसी भास्कर के पत्रकार को मिंटा देवी मिल गई, उसने बता दिया कि नहीं जी मैं तो यहां हूं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, और कांग्रेस नेताओं ने गलत छाट पड़ी, मेरा फोटो गलत पब्लिश कर दिया, अब वो टी शर्ट उतार के फेंक के बैठे हुए। एक बात। दूसरी बात, एक एक जगह केस राहुल गांधी ने बताया कि एक जगह पे 80 लोगों के पिता का नाम एक है जी, ठीक है, और ये जाहिर है हम सुनेंगे, आप सुनने लगे ये तो गलत बात है। 80 आदमी तो किसी बच्चे के 80 तो हो ही नहीं सकते, धृतराष्ट्र के अलावा तो किसी के 80 बच्चे नहीं हुए। तो उसमें यह है कि वो एक आश्रम है, वहां पे एक साधु बाबा रहते हैं, और उनके जितने भी चेले हैं वो उस साधु के सम्मान में सबने अपना वहां की परंपरा के हिसाब से अपना पिता का नाम साधु का नाम रख लिया है, और वो आधार कार्ड वोटर कार्ड पे चढ़ गया है। वो असल में बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन फेथ और आस्था की वजह से उन्होंने अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने गुरु का नाम रख लिया है। अब उस बात को राहुल गांधी उछाल रहे हैं। तो आप डीप में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे ही इश्यूज और भी हैं। अब तीसरी बात, उन्होंने 4 केस ऐसे बताए जिसमें एक जगह मल्टीपल वोटर हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो वोट चेंज होते गए। एक बंदा पहले कर्नाटक बेंगलुरु गया, बेंगलुरु से होसूर गया, होसूर से चेन्नई चला गया, उसने अपने अपने वोट चेंज कराए और चेंज हो गए, लेकिन इन्होंने गलती से रिकॉर्ड कर लिए। चुनाव आयोग इनकी चालाकी समझ गया है, उसे पता है कि हमारी इज्जत की डैमेज करके खुद माइलेज लेना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग कह रहा है आपकी बात सही है, अगर आपने 1 लाख के वोटों का घपला बताया है ना, तो आप एफिडेविट लिख के दो, हम वेरीफाई करके देंगे जी। अब अगर इतना इनको शौक है चेक करने का, तो बिहार में 65 लाख वोट कटे हैं, वहां पे क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं ये? वहां पे तो डेटा वेरीफाई करके दे दिया ना जी। इसका मतलब है अच्छा, अब एक और बात, कर्नाटक में सरकार किसकी है? कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की जी। राहुल गांधी कौन सी पार्टी के आरोपी हैं? कांग्रेस के। चुनाव आयोग का कोई अपना कर्मचारी होता है क्या? नहीं होता। चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों से काम लेता है जी। तो जाहिर है जो कर्मचारी है वो राज्य सरकार का है, वो कांग्रेस की है। तो ये किस पर आरोप लगा रहे हैं ये खुद नहीं जानते, क्योंकि कल को अगर किसी की कोई गलती निकलती भी तो राज्य सरकार की निकलेगी, वो इनकी सरकार है जी। तो इसलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि आप एफिडेविट दो, हम इनके एक एक प्रश्न का जवाब देने को तैयार हैं। अब राहुल गांधी एफिडेविट नहीं दे रहे, अब कह रहे हम बिहार जाएंगे, हम बिहार में चेतना यात्रा करेंगे, वोट चोरी की यात्रा करेंगे। अरे भाई, यात्रा करने की जगह वो 60 लाख में से 60,000 लोगों को ढूंढ के ले आओ और उन 60,000 लोगों को चुनाव आयोग के सामने खड़ा कर दो कि इन लोगों के वोट कहां हैं। गुप्ता जी, फिर ये मान ली कि एक सेल्फ क्रिएटेड होया मुद्दा हैगा, जानबूझ के क्रिएट किया गया मुद्दा हैगा? नहीं, दरअसल मुद्दा ये है कि कुछ खास तरह के लोग, कुछ खास लोग जो है विपक्षी दलों को सपोर्ट करते हैं, जिनको मोदी जी से, बीजेपी से प्रॉब्लम है। ऐसा भी आरोप कई पार्टियां लगाती हैं कि कई जो लोग भारत में बांग्लादेश से कहीं और से घुस आए और उनको रहते रहते या 15 साल, 10 साल, 20 साल हो गई, अब उन्होंने वोट बना लिए, अब उन्होंने वोट तो बना लिए, लेकिन चुनाव आयोग वेरीफाई कर रहा है, तो राहुल गांधी को लग रहा है उनके वोटरों का नुकसान हो रहा है। और शायद यही वजह है कि उनको लगता है कि उनका कोर वोटर को नुकसान हो जाएगा, उनके साथ वाले लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी तो नहीं है, तो कहीं इस तरह का कोई माइंडसेट तो नहीं है, प्रश्न उठता है। और दूसरी बात यह प्रश्न उठता है, आखिर राहुल गांधी को ये कैसे पता लग जाता है कि वो बीजेपी को वोट कर रहा है? अगर कोई वोटर गलत है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो वोटर है और उसकी जगह कोई और वोट डाल रहा है, तो भाई वो तो जो कर्मचारी है उसको देखने की जरूरत है, एक बात। और दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति मर गया तो इसका मतलब आंकड़े तो दुरुस्त होने ही चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आंकड़े दुरुस्त होने चाहिए। और वो कह रहे हैं कि भाई आपका वोट है, कट रहा है, 1 2 3 4, चुनाव आयोग ने सब मिला के 9-10 आइटम बताए कि इनमें से कुछ भी दे दो, आप जन्म प्रमाण पत्र दे दो, जाति प्रमाण पत्र दे दो, हथियार का लाइसेंस दे दो, पासपोर्ट दे दो, है ना, इसके अलावा और भी जो है और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट हैं जी, है ना, वो तहसील का कोई कागज दे दो, राशन कार्ड दे दो। अब इतने कागज नहीं दे पा रहे हैं तो वो लोग निकल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? 65 लाख लोगों का वोट कट गया। सोचो, अगर एक 4 लाख की आबादी वाले कोई 16 शहर का सारा वोट कट गया और कोई शोर नहीं मचा रहा, इसका मतलब है
कि ये वो लोग हैं जो गैर जो है या तो इलेजिटिमेटली रह रही है, या वहां पर रह ही नहीं रहे, या मर गए हैं, या डबल वोट है, या फेक वोट है। तो मेरा कहना ये, राहुल गांधी सही हो सकते हैं, जो गलती कर्नाटक में हो सकती है वो यूपी में भी होगी, बंगाल में भी होगी। राहुल गांधी को तो ये कहना चाहिए कि पूरे देश में ये प्रोसेस करो, फर्जी वोट एक भी नहीं होना चाहिए। मजे की बात यह है कि कल अमित मालवीय ने, भाजपा के जो है आईटी सेल के हेड ने एक ट्वीट किया जी। उसमें लिखा कि सोनिया गांधी देश की नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई, आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या यह है असली वोट चोरी? यानी जो विदेशी महिला है, जो देश की नागरिक नहीं है, देश में रह रही है लेकिन नागरिकता नहीं ले रही कई सालों से, 15 सालों से, और वो देश की वोटर कैसे बन जाती है? और हम सब ने देखा होगा कि राजेश खन्ना के चुनावों में सोनिया गांधी वोट डालते हुए फोटो खिंचा रही हैं, जबकि ऐसा करना अलाउड नहीं है जी। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और देश हित में, पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन को प्रमोट करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए। ठीक है गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਡ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।